خان جیسے پہلے بھی بہت سے وزیر اعظم آئے ہیں جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے رہے ہیں خارجہ اور دفاعی پالیسی کے اوپر، مگر معاملات جن کے ہاتھ میں رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ تعین کرنا چاہیے کہ کیا طالبان پہلے معافی مانگے یا ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ریاست سے معافی مانگنی چاہیے جو آج تک سازشیں کر کے منتخب حکومتوں کو گراتی رہی ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو پالا ہے کہ جن سے آج وہ کہہ رہی ہے کہ وہ معافی مانگے۔ تو مجھے تو آئین اور قانون کی، ہم کیا کس آئین اور کس قانون کی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو یہ پہلے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے آئین کو اور ریاست کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے۔ ہمارے فوجی افسروں نے شہادتیں دی ہیں، خون بہایا ان کا، ہمارے شہریوں نے قربانی دی ہے، پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگوں نے قربانی دی ہے، مگر چند سازشی لوگوں نے اس ریاست کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، کوئی جو دہشت گردوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس گینگ کے ساتھ کیا ہے، وہ کچھ سے زیادہ مختلف بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ متی اللہ۔ احسان اللہ، احسان آپ ذرا اس بات کا جواب دیجئے کہ وہ کیا ریئلٹی ہے، کہ کس طرح آپ نکلے، وہ جو سوال آپ سے ہوا ہے۔ بہت شکریہ اعجاز۔ بات یہ ہے، ایاز کو میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے کسی نے نہ تو گرفتار کیا تھا اور نہ کوئی مجھے زبردستی لے کر آیا تھا۔ میں نے پراپر مذاکرات کیے تھے اور ہمارے درمیان ایک دو طرفہ تحریری معاہدہ ہوا تھا جس میں گواہ موجود تھے اور جس میں ثالث موجود تھے، جس میں فوجی افسران کے دستخط تھے۔ تو وہ معاہدہ ہمارے درمیان ہوا تھا، وہ دو طرفہ معاہدہ تھا۔ میری طرف سے جتنی باتیں تھی اس پہ میں نے عمل کیا، جو میرے ذمے تھی، جو فوج کے ذمے تھی اس پر جب عمل نہیں ہوا تو اس کے بعد میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آن دا ریکارڈ ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ میں وہاں سے کیسے نکلا۔ تو ایاز کو میں مینشن کروں گا کہ وہ یوٹیوب پر وہ میرے اس تفصیلی بیان کو سن لیں تو ان کو جواب مل جائے گا۔ نہیں، میرا احسان اللہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سلیم صابری صاحب نے آپ کے انٹرویو بھی کیا، تو آپ ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کہاں تھے کہاں نہیں تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تو کیسے چلے گئے وہاں پر، اور وہ تحریری معاہدے کی کوئی نکات ہی بتا دیں، کیونکہ یہی تو مسئلہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ نے جو آپ کے ذمہ کام کیا تھا، آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پتہ تو چلے نا کہ وہ کیا نکات ہے جس پہ آپ نے عمل کیا، اور وہ کون سے نکات ہے جن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اگر وہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں تو آپ کو شکریہ۔ آن دا ریکارڈ ہے، وہ معاہدے کے جو نکات تھے وہ بھی میں نے شیئر کیے تھے۔ کن باتوں پر عمل ہوا تھا، میرے ذمہ تو یہ تھا کہ میں ایک پرامن زندگی گزاروں گا اور کسی تنظیم کے ساتھ، کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ بقول ان کے میں رابطہ نہیں رکھوں گا۔ تو وہ ساری باتیں اس کو تو میں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن پاکستان کی حکومت نے جو ان کے ذمہ تھا، مجھے جو شخصی آزادی تھی، میری جو سفری آزادی تھی، میرے خلاف جو کیس تھے اسے ختم کرنا تھا، وہ جب فوجی حکام نے نہیں کیا تو اس کے بعد میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اور باقی آپ نے کہا کہ میں کیسے نکلا ہوں، تو یہ تو پوری سٹوری ہے، اس کے لیے جلدی میری کتاب آئے گی انشاءاللہ، اس میں پوری سٹوری موجود ہے۔ احسان سے اگر ہم یہ صرف اتنا پوچھ لیں کہ کس رینک کے بندے ہیں آپ، احسان کو الگ سے بھی دوبارہ بلا دیں، نام نہ بھی بتائیں گے۔ میں نہیں سن سکا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بی بی سی سے ہوں، آج نام ہے میرا۔ آپ سے کتاب میں تو آپ کے بہت سارے انکشافات ہوں گے، صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ نام نہیں بھی بتانا چاہتے ہیں تو وہ رینک بتا دیں، کس رینک سے آپ کو زیادہ مدد ملی ہے آپ کے مذاکرات میں بھی اور پھر آپ کے فرار میں بھی؟ نہیں، میری جو مذاکرات ہوئی تھی وہ ایم آئی سے ہوئی تھی، ڈی جی ایم آئی اس میں انوالو تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک فوجی افسر کو جو کرنل کے رینک کا تھا ان کو مذاکرات کے لیے نامینیٹ کیا تھا، لیکن وہ مذاکرات آرمی چیف اور ڈی جی ایم آئی کے اپروول کے ساتھ ہوئے تھے۔ اور فرار میں کس نے مدد دی تھی؟ فرار میں صرف اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور کسی نے میری مدد نہیں کی۔
अल्लाह तो हमारा भी है, वैसे मैं तो अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। आजम, ये जो बात आप पूछे, अगर आपका ईमान पुख्ता हो और आपका अज़म मजबूत हो और आप में टिकने की हिम्मत हो और खतरा मोल लेने की हिम्मत हो तो आप भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता। जी जी जी, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ एक दोस्त ने भी इसको सुना है, तो एक सवाल उनकी तरफ। मैं अब चाहूँगा एहसान साहब, माजरत, आप ईमान की बात कर रहे हैं, अल्लाह पे ईमान की, वो नो डाउट हम सब मुसलमान हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना 90 से देखें तो हजारों तालिबान या जो मुजाहिदीन गए वो मारे भी गए हैं, आप बच गए, तो क्या उनका ईमान कमजोर था? आप गलत समझे हैं। जो मारे गए हैं उनका ईमान मजबूत था, इसलिए तो वो मारे गए हैं, क्योंकि उनमें मुकाबला करने की हिम्मत थी। और जो मुकाबला करता है या तो वो कामयाब होता है या वो अपने मंजिल मकसूद को पा लेता है। तो शहादत नाकामी नहीं है। अगर वो मारे गए हैं तो वो शहीद है मेरे लिए, और वो मर्तबे तक पहुंचे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि फैजुल्ला आखिरी कमेंट करें। हमने फैजुल्ला की गुफ्तगू सुनी है, एहसान की गुफ्तगू सुनी है, मतियुल्लाह की गुफ्तगू सुनी है, अयाज ने अपना पॉइंट किया है, आजम ने पॉइंट किया है। मैं चाहूँगा मुख्तसरन में एक सवाल अगर कर लो, छोटा सा सवाल। मैं एहसानुल्लाह एहसान साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि शायद मैं इतना आगाह नहीं हूँ, आपने इस पर पहले शायद बात की हो, मगर ये आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो कुछ हुआ था उस हवाले से आपसे भी कुछ बातों को मंसूब किया जाता है। क्या आप और तारीख तालिबान पाकिस्तान उस हमले में मुलव्वस थे या नहीं थे, और उस वाक़े को आप कैसे देखते हैं? आप APS की बात कर रहे हैं? जी जी, APS की, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के। जी, APS के हमले के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो हमला इंतहाई नामुनासिब था, और उसी वक्त उसी दिन मैंने उस हमले की न सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि उसको गैर इंसानी और गैर इस्लामी भी करार दिया था। और मैं वाहिद शख्स था अपनी तंजीम के अंदर कि मैंने मीडिया पे आके BBC के साथ और दीगर जो बड़े बड़े इदारे हैं, रिफतुल्लाह और अक्ज़ई यहाँ मौजूद है, वो स्टोरी जो मैंने APS के हमले के हवाले से जो मजम्मती बयान दिया था वो रिफत ने कवर किया था, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने उसकी मजम्मत की थी, और मैं उस हमले में न तो शामिल था न मैं उस हमले का हिस्सा था, और उस हमले के हवाले से मैंने तफसीलन कुछ दिन पहले اون خطو کنه नेट نه دی ډراپ شوی دا دغه مطلب पहले TCM को एक इंटरव्यू भी दिया था, उन्होंने उन चीज़ों को कान छान के पेश किया। फिर मैंने तफसीली अपना जो वर्जन है वो मैंने शाया किया था कि वो हमला कैसे हुआ। वो पाकिस्तान आर्मी की इनसाइड जांच थी और उन्होंने वो हमला खुद किया था, कैसे उन्होंने प्लान किया था, उसमें TTP के कौन लोग शामिल इतनी कामयाब हो गई कि उसमें जो तालिबान थे, TTP थी, उसकी कमर टूट गई और वो ख़त्म हो गई पाकिस्तान से। लेकिन आज फिर पता चला है कि आज 6-7 साल बाद हम दोबारा उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं जो शायद हमारे ख्याल में 6-7 साल पहले ख़त्म हो गए थे। अब इसमें मेरे एक तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म ने जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है तो ये उनके ओन पर थी या उनको कहा गया था स्पेशली कि आप ये स्टेटमेंट दें, क्योंकि जब माजी में हमने देखा था कि जब मुज़ाकरात हुए थे 2014 के अराउंड, तो तब पार्लियामेंट के अंदर ये बात की गई थी और फिर पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर एक तरह से इजाज़त दी थी कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें। दूसरा मैं एहसान से पूछना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से जो है वो पाकिस्तान से मतलब वो अपनी हिरासत से वो भाग निकले थे, उन्होंने एस्केप किया था, जिनमें उनकी अल्लाह ने मदद की थी। लेकिन अब इतना अर्सा हो गया, मतलब वो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो सॉर्ट आफ्टर पर्सन थे, जिनको पकड़ा जाना था, जिनके बारे में बड़ी एलिगेशन थी, बड़ी बातें आती थी हमारे सामने। तो अब एक तवील अर्सा हो गया है वो पाकिस्तान से कहीं गायब हैं, कहीं पाकिस्तान में हैं या कहीं बाहर ठहरे हुए हैं। तो उस मुल्क में या उस जगह पर जहाँ
वो ठहरे हुए हैं? कभी क्या उनको किसी ने अप्रोच किया, किसी ने शनाख्त किया उन्हें? और क्या जो पाकिस्तान में लोग थे जो कि जाहिर सी बात है वो तो एस्केप किए हैं, वो खुद से तो नहीं हम लोगों ने उन्हें छोड़ा, जाहिर सी बात है। तो जब वो एस्केप करके चले गए तो आमतौर पे तो अगर कोई इस तरह से एस्केप करके निकले तो फिर उसको ट्रैक किया जाता है, उसको मारने की कोशिश की जाती है। तो जो एहसानुल एहसान है, क्या उनको किसी ने ट्रैक करके, ट्रेस करके, क्योंकि अब वो अपनी वीडियोस भी बाकायदगी से अपलोड करते हैं, तो उनकी लोकेशन मालूम करने की और उनको एक्सेस करके किसी ने कभी हर्ट करने की कोशिश की, किसी ने थ्रेटन करने की कोशिश की, या दूसरी तरफ से वैसे तो अल्लाह की मदद से वो गए थे, लेकिन फिर भी कुछ सिंपैथाइजर्स होते हैं उनके, क्या उन्होंने उनको अभी तक जो उनको जहाँ तक भी वो महफूज जगह पर है तो उनको किसी ने सेफ्टी दी हुई है? ये मेरे एहसान से कुछ सवालात हैं। जी एजाज। एहसानुल्लाह, आप ये नौशीन का भी जवाब दें। इफ़त है हमारे साथ और अहमद भी आए हैं। मैं इनसे भी कहूँगा कि मुख्तसर सा सवाल कर लें ताकि एहसान आप एक दफ़ा जवाब दें। अच्छा एजाज, मैं आपके मेहमान से सवाल करना चाहूँगी कि अब तक तो अल्लाह की मदद और अपना नाम उन्होंने अपने कामों से बनाया है, फ्यूचर वो अपना कहाँ देखते हैं? क्या ऐसी ही किसी तंजीम का हिस्सा बनेंगे? क्या अफगानिस्तान में कहीं हमको किसी रूप में नजर आएंगे, या पाकिस्तान में ही कहीं पे ही एक्टिव होंगे? ये अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम इनकी जो बुक आने वाली है उसके अलावा? जी एजाज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मेरा आपके मेहमान से दो सवाल हैं। एक तो ये कि मलाला हमले पर इनका मौक़िफ़ क्या है, और दूसरा मेरा जो सवाल है, 18 जनवरी को खबर आई थी दी संडे गार्डियन में कि एहसानुल एहसान पाकिस्तान की फौज से चले गए हैं, और उसके बाद हमने इधर उधर से तस्दीक की, हमने चेक किया और हम उस पर स्केप्टिकल हो गए, और उसके बाद उसी के अंदर जो है वो इनके आर्टिकल आना शुरू हो गए। ये बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश्ड है कि जो संडे गार्डियन है वो इंडियन इंटेलिजेंस का नेटवर्क है। तो उस सवाल के उस खबर के बारे में मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपके मेहमान ने उनको बताया था कि मैं चला गया हूँ, या उनकी अपनी खबर थी कि एहसानुल एहसान इज नो मोर विद पाकिस्तान आर्मी? जी एहसान, मेरे ख्याल में अब आप जवाब दें, सवाल काफ़ी हैं आपके, और फिर मैं फैजुल्लाह को कहूँगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। ठीक है। पहली बात तो ये है कि पहली बहन ने जो सवाल किया, मैं जहाँ भी हूँ मैं अपने तदाबीर के साथ, हमारा ईमान है कि हम तदबीर करते हैं, तदबीर के बाद हम तवक्कुल करते हैं। तो मैं जितनी भी मुमकिन तदाबीर है वो उसके साथ, उसके बाद मैं तवक्कुल के साथ मौजूद हूँ और अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा हूँ। बाकी आपके सवाल का ज़्यादा तो नहीं है, आप इंडिया में तो नहीं है, वो टू दी पॉइंट बात है कि आप इंडिया तो नहीं आपको सपोर्ट कर रहा, आप इंडिया के पास तो नहीं, टू दी पॉइंट बात। नहीं, इंडिया मुझे क्यों सपोर्ट करेगा और इंडिया पाकिस्तान से मुझे कैसे निकालेगा? अगर ये सवाल तो आप अपने इदारों के ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि इंडिया इतना बहादुर है या इतनी इनकी ताकत है कि वो मुझे पिशावर के शामी रोड से उठाकर इंडिया लेकर गए हैं, तो ये तो आप अपने इदारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मेरी बहन के सवाल का ज़्यादातर हिस्सा वो सिक्योरिटी इदारों से लिंक करता है, तो मेरे ख्याल में ये सवालात उनको उनसे पूछने चाहिए, तो वो मुझे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से जो उनसे बचने की जितनी भी तदाबीर है वो मैं कर रहा हूँ। रिफतुल्लाह मुझे नजर आए और फिर वो गायब हो रहे हैं। मैं चाह रहा था रिफतुल्लाह बात करें, लेकिन अभी वो दोबारा गायब हो गए। मैं अब चाहूँगा कि फैजुल्लाह एक सवाल रख दिया था कि उन्होंने मलाला यूसुफजई के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन किया, तो मलाला यूसुफजई मेरे ख्याल में जब भी आप किसी जंग का हिस्सा होते हैं तो आप उस
जंग के असरात के लिए खुद को तैयार रखे। मलाला यूसुफजई बाकायदा तौर पर इस जंग का हिस्सा बन गई थी। उन्होंने बाकायदा मुजाहिदीन के खिलाफ, उन्होंने बाकायदा तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और उस प्रोपेगेंडे के रद्द अमल के तौर पर वो उस पर हमला हुआ, वो जख्मी हुई और बतौर तर्जुमान मैंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। न तो मुझे उस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने पर कोई नदामत है और न मुझे कोई इस बात की फिक्र है कि वो मैंने कबूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में वो हमला बिल्कुल ठीक था। मलाला जंग का और उनके ऊपर हमला बतौर एक जंग के स्टेज के होना चाहिए। एहसान, आप तो कुरान का भी बहुत हवाला देते हैं, तो जब आप कहते हैं कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, तो मलाला एक बच्ची के प्रोपेगेंडा और उसके अल्फाज का जवाब आपने गोली से क्यों दिया फिर? देखिए, जब आप दायरा इस्लाम से खारिज होते हैं, आप किसी जंग में मुखालिफ फरीक के साथ खड़े होते हैं, आप उनके मुशाबे होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं, तो फिर प्रोपेगेंडिस्ट के खिलाफ तो ज़्यादा सख्त इक़दाम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई आपके खिलाफ लड़ रहा है तो वो आपका बंदा मार सकता है, लेकिन जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं वो आपके खिलाफ लोगों के अज़हान मुतनफ़्फ़िर करता है। मेरे ख्याल में मलाला के में आप कुरान का कोई हवाला देना चाहेंगे? क्योंकि हमने तो सुना है कान के बदले कान, आँख के बदले आँख। वो किसास का हुक्म है। आप किसास के हुक्म को उमूमी तौर पर जो इज्तिमाई जंग उमूर है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। नहीं तो उसमें आप हवाला देंगे, तो प्रोपेगेंडिस्ट के हवाले से इतनी सख्त सजा का कोई हवाला देंगे आप? इन लोगों से मुझे तकलीफ होती है, इनको मेरे से परे कराओ और उस पर सहाबा ने एक्शन लिया। और आप तारीखी वाक़यात पढ़ें, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ना चाहिए, इस्लाम भी पढ़ना चाहिए। नहीं, बच्ची तो एक बच्ची है, शरस्ता दी रिकॉर्डर्स द स्क्रीन एक कम उम्र बच्ची है, आप उसके साथ तो ऐसे नहीं कर सकते। जो आप बच्ची कर रहे हैं, वो जो इस्लाम को कोट कर रहे हैं, वो ये है कि वो गैर मुहारिब है, वो जो जंग का हिस्सा नहीं होते, वो जो जंग में शामिल नहीं होते, उनके खिलाफ उनका एहतराम है। बाकी जो जंग का हिस्सा होते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और वो होता है। आप इस्लाम को स्टडी करें, मेरे ख्याल में मती को भी और आप दोनों को स्टडी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, मैं नाजरा मुश्ताक। अभी पाकिस्तान काफी अरसे के बाद न्यूजीलैंड 18 साल के बाद आ रही थी, लेकिन संडे गार्जियन के अभिनंदन मिश्रा ने एक खबर लगाई थी जो कि अगस्त में दी थी, जबकि विजिट जो था वो सितंबर में था। तो उन्होंने उस वक्त आपका नाम कोट किया था कि आपने इस तरह से उनको बताया कि पाकिस्तान में थ्रेट्स हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, उस हवाले से मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर। मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड की टीम को खतरा है और संडे गार्डियन ने उस पर स्टोरी की और उसके बाद जो सारा मामला हुआ वो आप लोगों के सामने है। अच्छा एहसान, एक सवाल पहले आया था, मैं चाह रहा था कि उसका जवाब भी आप दे दें कि आप जब रिलीज हुए या आपके बकौल आप निकल गए, तो उसकी सबसे पहले खबर एक इंडियन टैबलॉइड तक कैसे पहुंची? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी खबर मेरे एक जानने वाले के तवस्सुत से वहाँ तक पहुँची थी, वो जो इंडियन अखबार है। और दूसरी बात ये कि अभिनंदन मिश्रा को एज ए जर्नलिस्ट मैं बहुत पहले से जानता हूँ
उनके साथ मेरा राब्ता है, और जैसे दीगर सहाफ़ियों के साथ, पूरी दुनिया के सहाफ़ियों के साथ मेरा राब्ता है, तो उनके साथ भी मेरा राब्ता है। और मेरे एक दोस्त के ज़रिए से उनको ये खबर पहुंची थी और उन्होंने इस पर स्टोरी कर दी थी। मेरे ख्याल में पहुंचनी भी उन्हें चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर जितनी सेंसरशिप है और पाकिस्तानी मीडिया की जितनी औकात है, तो वो इस स्टोरी को कवर नहीं कर सकती थी, तो इसलिए ज़रूरी था कि वो इंडिया मीडिया पर कवर हो। बहुत शुक्रिया एहसान, आप से गुफ्तगू हुई। फैजुल्लाह की गुफ्तगू हमने कम सुनी, मैं फैजुल्लाह से अलग से इनकी किताब के हवाले से एक सेटिंग रखूंगा। मतीउल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक लीगल एस्पेक्ट दिया। अयाज आपका, अहमद आपका, नौशीन, इफ़त, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस तरह की जो गुफ्तगू है वो जारी रखेंगे। मैं फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। आई थिंक सो हमने काफ़ी इस गुफ्तगू को